Good morning students, I am Anjana Yadav from PGT. Today I will discuss the next topic of life process is transport in plants. You have studied in previous units that all living organisms including plants and animals require a regular supply of oxygen and nutrients to stay alive. So they also produce waste material like carbon dioxide, ammonia, and urea, which must be removed from the body to avoid their accumulation to harmful level. We have also studied that plants synthesized food in the cells of leaves, while absorption and assimilation of food and nutrients takes place in the intestine of humans. So these nutrients are required to be carried a various part of body in plants and animal. The body of every organism is made up of cells. A large organism have million of cells in its body, and the organism able to maintain its life and survive. All its cells must be supplied with essential substance like food, water, etc. So some arrangement is required inside an organism which can carry the essential substance to all its parts so that they reach each and every cells of its body. Means in the first topic, digestion, we studied that in human body and plants also many processes are occurs like digestion, respiration and then transports and then excretion. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो वो क्या करता है, सबसे पहले डाइजेशन करता है एंड डाइजेशन के बाद वो क्या करता है, जो भी उसकी डाइजेशन के साथ साथ वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है. आफ्टर देन जो भी उसने डाइजेस्ट किया, रेस्पायर किया इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो क्या करता है, बॉडी से रिलीज़ भी करता है एंड जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन है एंड कुछ मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो एब्जॉर्ब करते हैं वही बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इन प्लांट एंड ऑल्सो इन एनिमल्स. सो what is the means of transport? What is the means of transport? To carry the things from one place to another. जो कैरी करता है किसी थिंग को एक प्लेस से अनदर प्लेस, उसे हम सिंपली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं. बट इन बायोलॉजी transport is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to the other parts of its body. बायोलॉजी में बोला जाता है कि कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो किसी बॉडी के किसी वन पार्ट्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाए एंड आफ्टर देन उसे कैरी किया जाए अनदर पार्ट्स के द्वारा, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्ट. सो नाउ आई डिस्कस द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. सो प्लांट्स हैव अ टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फर्स्ट इज water and minerals and second by food. So the first is xylem which carries water and minerals and the second one is phloem carries food materials and other substance like hormone in the plants. क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पर कि what is the function of xylem and phloem. So what is the function of xylem? Carried water and minerals and the function of phloem carries food materials and other substance like hormone in the plants. It is also called carried of food material. ठीक है. Now I will discuss the transport of water and minerals from upper parts of plants. So in plants, transport can be divided into two parts: transport of water and minerals and transport of food prepared during photosynthesis and other substance like hormones. So
I show you a diagram of ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। देखिए ये प्लांट्स है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ऑल प्लांट्स बॉडी आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ जाइलम टू प्रोसेस आर अकर, फर्स्ट इज ट्रांसपायरेशन एंड सेकेंड वन इज रूट प्रेशर, यानी कि 2 प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड इन द जाइलम जो प्लांट्स का जो फ्लो होता है, मतलब प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मींस ये स्टार्टिंग होती है यहाँ से रूट पार्ट से और ये जाता है अपर पार्ट्स तक, यानी कि ये सिंगली यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि ये सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, अपने वाटर और मिनरल्स को फ्लो करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। बट इन फ्लोएम द नॉन ग्रीन पार्ट्स, यानी कि जो हमारा प्लांट होता है, मान लीजिए हमारा प्लांट है और ये हमारा क्या है, ग्रीन प्लांट्स, तो ये हमारा यहाँ पर मान लीजिए नॉन ग्रीन प्लांट है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है। तो इन दोनों के बीच में मतलब जो प्लांट का फ्लो है या तो ये ऊपर वाले लेवल में जाएगा या फिर ये इधर नीचे वाले पार्ट्स में जाएगा, यानी कि ये क्या कर सकता है, अपवर्ड फ्लो भी कर सकता है और डाउनवर्ड फ्लो भी कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो। क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो। सो in the xylem water and minerals flow is unidirectional and in the phloem फूड डायरेक्शन इज बाई डायरेक्शन, मतलब फूड का फ्लो जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ साइड वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। सो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्लांट है जिसमें कुछ लीव्स हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, हमारी सॉइल है और यहाँ पर हमारी क्या है, रूट्स है। सो देखिए जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स। यहाँ पर हमारे जाइलम टिश्यूज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर एंड मिनरल्स का अप फ्रॉम द रूट्स। कहाँ से, रूट से अपवर्ड साइड में, और इसीलिए इसका जो फ्लो होगा वो स्टेम के अंदर वो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। एंड इन द फ्रूट ऑफ फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड अप इन द प्लांट्स फ्रॉम द लीफ। और यही जो फूड जो है, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो अपने फूड को बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन द लीव्स। सो देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये लीव्स में जाएगा और आप देख रहे हैं कि जो हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है वो सीधा यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कि जो है हमारा फ्लोएम जो है उसमें प्रोसेस देखिए आप कि यहाँ से क्या हो रहा है कि फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, फूड जो है प्रिपेयर किया गया लीव्स के द्वारा। एंड देखिए इसका जो फ्लो है इधर भी जा रहा है और देखिए यहाँ से ये इसका फूड का फ्लो जो है इनसाइड मतलब रूट्स के पास भी आ रहा है। तो मतलब क्या है कि फ्लोएम टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फूड को इन डाउनवर्ड कंडीशन एंड अपवर्ड कंडीशन। और जब भी यहाँ पर जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा वाटर का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जो फूड का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। वी ऑल्सो स्टडी, देखिए जितने भी हमारे हर्ब्स प्लांट होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लो होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, वो प्रोसेस होती है किसकी, मतलब जो भी हमारा फ्लो होता है जाइलम का या फ्लोएम का या फूड का या वाटर का, वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, बाई डिफ्यूज़न। एंड जो हमारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो लंबे होते हैं तो उनको ज़्यादा अमाउंट में एटीपी को खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को लेना पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पर जो फ्लो होता है इसका, वो जो भी इनका प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्योंकि उनको वहाँ पर क्या करना होता है कि अधिक एनर्जी को खर्च करना होता है, तो लॉस करना होता है, तब जाकर वो क्या करते हैं, उस चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। तो जो हमारा जितने भी छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड जितने भी हमारे लार्ज ट्रीज होते हैं, लार्ज प्लांट्स होते हैं, उन सब में जो वाटर का फ्लो होता है और जाइलम का जो फ्लो होता है या जो फूड कंडक्शन होता है, वाटर कंडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो देखिए कि हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो देखिए ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर 2 टाइप्स ऑफ जाइलम एलिमेंट्स दैट हेल्प इट कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारे ट्रैकिड्स हैं और वेसल्स हैं, ये 2 टाइप्स के जाइलम एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, कंडक्शन करवाते हैं वाटर और मिनरल्स का। सो फर्स्ट वन इज जाइलम वेसल्स। सो जाइलम वेसल्स क्या है बेटा, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जाइलम वेसल्स हैं दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हॉलो चेन्स ऑफ डेड जाइलम सेल्स। ये हॉलो होते हैं देखने में, हॉलो का मतलब है जैसे कि हम बात करें
बम्बू की, तो बम्बू हमारा क्या है, एक तरीके से हॉलो है. दिस दैट टाइप स्ट्रक्चर अकर इन जाइलम वेसल्स इन डेड जाइलम सेल्स एंड अटैच जॉइंट टू एंड टू एंड. और ये क्या रहते हैं, एंड टू एंड क्या करते हैं, जॉइंट रहते हैं. जब ये एंड टू एंड जॉइंट रहते हैं बेटा, तो क्या होता है कि द एंड वॉल ऑफ द सेल हैव ब्रोकन डाउन, सो लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म्ड. जो इनकी एंड वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है, और इससे क्या होता है कि जो भी इनकी ओपन ट्यूब है, मतलब जो ओपन ट्यूब यहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारा वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होगा, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. एंड जाइलम बेसिस रन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स. और इससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर और मिनरल्स हैं वो आसानी से क्या कर पाते हैं, अपवार्ड कंडीशन में, यानी कि उनका जो फ्लो है वो अपवार्ड कंडीशन में बाय स्टेम क्या करता है, पहुँच जाता है. सो इसीलिए इनके जो एंड्स हैं वो क्या रहते हैं, जॉइंट रहते हैं एंड टू एंड. एंड आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जब इनकी जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. सो द सेकेंड पॉइंट इज नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब होती है. ये नॉन लिविंग होता है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम वेसल्स कैसा एलिमेंट है या कैसा पार्ट है इसका, ये कैसा है, तो हम बता सकते हैं ये नॉन लिविंग है एंड इनमें लॉन्ग ट्यूब पाई जाती है. डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई. इनके पास ना ही साइटोप्लाज्म होता है और ना ही कोई न्यूक्लियाई होता है. मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन. ये किसके बने होते हैं, सेलुलोज, एंड किसके बने होते हैं, लिग्निन. हमको पता है सेलुलोज क्या होता है एंड लिग्निन क्या होता है. एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो क्या करवाता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. किसके लिए, वो जो है अपवार्ड कंडीशन में आसानी से खड़ा रहे, इसलिए ये लिग्निन क्या करवाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हैव पिट्स इन देयर सेल वॉल. इनके पास क्या होते हैं, पिट्स होते हैं इनकी सेल वॉल में, जो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं. कैसे होते हैं, ओपन. सो देखिए यहाँ पर हम आप डायग्राम देख लेते हैं जाइलम बेसिस का. आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है. सो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जाइलम बेसिस का स्ट्रक्चर है. यहाँ देखिए आपको बताया गैप बेयर द वॉल्स ऑफ सेल्स हैव बीन ब्रोकन. मैंने भी आपको बताया था कि जब इसकी बॉल्स जो हैं ब्रेक हो जाती हैं तो इनके जो पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इससे आसानी से जो है चीज़ें ये एब्जॉर्ब कर पाता है और आगे की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो पाता है. इसके पास पिट्स होते हैं, थिन एरिया ऑफ सेल वॉल. यहाँ पर एक बहुत पतली सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इसके पिट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं. थिक सेल वॉल कंटेनिंग लिग्निन. इसके चारों तरफ लिग्निन पाया जाता है. इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है टू स्टैंड अपवर्ड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस है जहाँ पर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, और बचा हुआ है रिमेन्स ऑफ द एंड वॉल. हमने पढ़ा था कि इसके जो एंड वॉल होते हैं वो हमेशा आपस में जुड़े हुए होते हैं. तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम बेसिस. चलो इसी के चलते हम बात कर लेते हैं ट्रैकिड्स. देखिए ट्रैकिड्स हैं हमारे यहाँ पर, हमारे ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है. ये इनके जो एंड्स होते हैं थोड़े टेपरिंग होते हैं, मतलब नुकीले नहीं होते हैं, थोड़े से घुमे हुए होते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं. सो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. देखेंगे आप कि ट्रैकिड्स क्या होते हैं. देखिए ट्रैकिड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल विद पिट्स इन देयर सेल वॉल. ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं, इनके पास पिट्स होते हैं इनकी सेल वॉल में. ऑल प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जितने भी प्लांट्स होते हैं ट्रैकिड्स के, उसमें क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है, मिनरल्स का कंडक्शन होता है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट से जितने भी हमारे ऊपर के पार्ट्स होते हैं उन सब में जिनका क्या होता है, फ्लो होता है, कंडक्शन होता है, जहाँ पर ये इसका यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये डेड सेल्स होती हैं. ये कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं विद लिग्निफाइड वॉल. और इनकी जो वॉल होती है इसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है. बट दे डू नॉट हैव अ ओपन एंड. लेकिन इनके ओपन एंड नहीं होते. अभी हमने डायग्राम में देखा था कि इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं. सो दे डू नॉट फॉर्म बेसल्स. इसीलिए ये क्या नहीं फॉर्म करते हैं, बेसल्स को फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो एंड होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं. एंड देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये एलोंगेटेड सेल्स होती हैं विद टेपरिंग एंड. मैंने जैसा भी आपको बताया था कि इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं एंड नॉट कम्प्लीटली ओपन. और ये कम्प्लीटली ओपन नहीं होते हैं. हैव अ पिट्स. इनके पास क्या होती हैं, पिट्स होते हैं इन देयर सेल वॉल. सो वाटर कैन पासिस फ्रॉम वन ट्रैकिड्स टू अनदर ट्रैकिड्स. यानी कि इसीलिए इनके पास जो पिट्स होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, इनकी सेल वॉल के अंदर जो पिट्स होते हैं उनकी वजह से जो वाटर है वो पास हो पाता है वन प्लेस टू अनदर. सो
ना हम डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारा जो मैकेनिज्म चलता है हमारा इनके अंदर, इसके बाद हम कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए आपको बता दें, बिफोर द डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द लीव्स, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म्स एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रूट जाइलम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के अंदर वो दो पार्ट से होता है, ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका पहला आता है एपिडर्मिस, दूसरा आता है आपका एंडोडर्मिस, तीसरा आता है आपका रूट कॉर्टेक्स एंड फोर्थ आता है आपका रूट जाइलम। सो जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, एक आउटर लेयर होती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी किसी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, या मैं नॉर्मली बात करूं कि मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है जिसके पास कुछ वॉल्स हैं, मतलब ये कुछ इसकी सेल्स हैं, और इन सेल्स के पास इनका कुछ रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। थोड़ा डायग्राम रफली है बेटा, ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। ये हमारे क्या हैं, रूट हेयर्स हैं, ठीक है। ये इनकी क्या हैं, सेल्स हैं, ये सेल्स हैं इसकी। तो इसकी सबसे जो आउटर लेयर होती है बेटा, ये होती है एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस, यानी कि इनके पास एपिडर्मिस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, इनके रूट हेयर्स हैं, ठीक है बेटा। ये इनकी क्या है, इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है। कुछ प्लांट्स हमारे डाइकोट और मोनोकोट का डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसमें किसी किसी में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और किसी में क्यूटिकल नहीं होती है। जो क्यूटिकल होती है बेटा, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का। सो देखिए यहाँ पर हमारी कुछ सेल्स होती हैं, मैं आपको थोड़ा रफली बड़ा बड़ा डायग्राम बनाकर आपको कुछ समझा दे रही हूँ चीज़ों को। तो ये इनके पास ये क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करती हैं, और इनका भी अपना एक अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है सबका। सो देखिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर इसको डिक्टेट करके समझा देती हूँ। ये मान लीजिए एक डायग्राम है, और आपको यहाँ पर कुछ सेल्स लाइक स्ट्रक्चर और बनाकर बताती हूँ मैं। थोड़ा रफली डायग्राम है बेटा, बस इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। देखिए ये तो होगा इसका रूट हेयर्स। इसके जस्ट ऊपर हमारी क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट बाद हमारी क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हमारी यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये सारी सेल्स एपिडर्मिस के बाद हमारी क्या आती है, एंडोडर्मिस। इनसाइड लेयर होती है ये प्लांट्स के अंदर, अगर हम इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं। और इसी के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, मान लीजिए हमारे क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर कुछ दिखाई जाएगी। तो ये कुछ सेल्स होती हैं इसके अंदर। और ये सब हमारी क्या है, यहाँ पर ये सब हमारी क्या है, फ्लोएम है। इसके जस्ट इनसाइड किसी किसी में पिथ प्रेजेंट होता है, किसी किसी में पिथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा जाइलम है, और इसके जस्ट बाद हमारा क्या है, ये फ्लोएम है, और इसके इंटरनल साइड में हमारा क्या होता है, पिथ होता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है। और जो एपिडर्मिस इज ओनली वन सेल थिक, ये केवल एक सेल थिक लेयर स्ट्रक्चर होती है। एंड द लेयर सेल्स अराउंड द वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके चारों तरफ कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के रूप में इसके चारों तरफ जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं। और जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। मतलब क्या है कि ये जो सेल एपिडर्मिस थी उसके पास कुछ सेल्स थी, और सेल्स के बाद क्या हुआ, इंटरनल साइड में उसके पास जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज थे, जिसे हमने क्या नाम दिया, एंडोडर्मिस का नाम दिया है। एंड द पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द एंडोडर्मिस, और जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। जो हमारा हाइपोडर्मिस एक्चुअली होता क्या है कि कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं मोनोकोट और डाइकोट, उसमें मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम, और मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट की बात करेंगे तो सबका फंक्शन अलग अलग होता है, सबकी सेल्स अलग अलग होती हैं। सो नाम केवल हमें समझना है क्या है, रूट कॉर्टेक्स मीन्स एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट कॉर्टेक्स कहते हैं, उस एरिया को रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड द जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट इन द रूट्स इज कॉल्ड रूट जाइलम, और जो जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इस रूट के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, रूट जाइलम कहते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट्स जहाँ पर हमारी ये कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि हमारी जो वाटर और मिनरल्स की मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो नाउ आई डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अपवार्ड मूवमेंट। सो देखिए हम अपवार्ड मूवमेंट में वाटर और मिनरल्स की बात करेंगे।
सॉरी बेटा। सो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रही हूँ कि जो मैकेनिज्म होती है ट्रांसपोर्ट की वाटर एंड मिनरल्स की, वो कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। देखिए ये हमारा, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ, इस डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ स्ट्रक्चर, आपको शो कराती हूँ मैं इस स्ट्रक्चर को। देखिए आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का इन प्लांट्स में, वो कैसे होता है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाकर समझाया था कि कुछ रूट हेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस होती है और रूट कॉर्टेक्स होता है, और रूट कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर जाइलम वेसल्स होते हैं, स्टेम होता है ये आपका, यहाँ पर लीफ जाइलम होते हैं, ये लीव्स हैं आपकी, और वहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमेटा। हम फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक में ऑल्सो डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रोमेटा एंड हाउ दे ओपन एंड क्लोज, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था। तो हाँ, हम पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो देखिए फर्स्टली इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हम प्लांट्स को देखते हैं कि हमारा कोई प्लांट है, अगर हम उसे सॉइल के अंदर लगाते हैं, मतलब सॉइल के अंदर इस प्लांट को मान लीजिए हमने लगाया, तो आप देखेंगे कि जो सॉइल है उसमें कुछ ना कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उस सॉइल को पहले बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, देन हम क्या करते हैं वहाँ पर हम प्लांट्स को उगाते हैं, यानी प्लांट्स को वहाँ पर जर्मिनेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि जो हमारा प्लांट्स है वहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, ये हमारी सॉइल है और उसके अंदर हमारे क्या है, रूट हेयर्स हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें अब जो वाटर, प्लांट टेक इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मिनरल्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ डिजॉल्व मिनरल्स को लेते हैं फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स। किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। सो आप देखिए कि मैं आपको यहाँ पर एक सिंपली लैंग्वेज में आपको समझा दे रही हूँ कि ये रूट हेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सॉइल पार्टिकल क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे और रूट हेयर्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब सॉइल पार्टिकल्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इनके सॉइल पार्टिकल के अंदर फिल्म ऑफ वाटर आपको दिखाया गया है कि भाई सॉइल है तो कहीं ना कहीं उसमें मॉइस्चराइजर होगा, और मॉइस्चराइजर की वजह से क्या होगा कि जो हमारी रूट हेयर्स हैं वो उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाएंगे वाटर एंड मिनरल्स को। आफ्टर देन ये क्या करेगा, रूट कॉर्टेक्स में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, रूट कॉर्टेक्स। मैंने आपको भी बताया था कि रूट कॉर्टेक्स क्या होता है। सो देखिए यहाँ पर ये रूट कॉर्टेक्स में गया। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रूट जाइलम। ये हमारा पार्ट है रूट जाइलम का, यानी कि रूट कॉर्टेक्स से होता हुआ हमारा जो वाटर और मिनरल्स हैं वो फ्लो होंगे कहाँ पर, रूट जाइलम में। जैसे ये रूट जाइलम में पहुंचेंगे, आप देखिए जाइलम वेसल्स इन द स्टेम, क्योंकि जो हमारा प्लांट है उसमें क्या पाई जाती है, क्योंकि वो लिग्निन का बना होता है, उसमें हमारे ट्रैकिड्स और हमारे क्या होते हैं, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर एंड मिनरल्स के फ्लो को हमेशा क्या करते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है उनका। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेम के द्वारा जो भी हमारा वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। आफ्टर देन यहाँ पर हमारे कुछ जाइलम, लीफ जाइलम या फिर हमारा जाइलम जो होगा वो क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा। जैसे जैसे वाटर का कंडक्शन होता जाएगा बेटा, तो वाटर जब हमारा कंडक्शन होगा वाटर का, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्लांट सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर वो क्या करती हैं, शिफ्टिंग करती रहती हैं, मतलब वाटर का सेल टू सेल, और जैसे जैसे शिफ्टिंग होती चली जाती है और जो है वाटर का फ्लो जो है अपवार्ड डायरेक्शन में क्या होता है, पहुंचता जाता है। सो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी जाइलम वेसल्स हैं इनके द्वारा हमारा वाटर का फ्लो देखिए पहुँच रहा है। ये हमारी लीव्स हैं जहाँ पर हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, इसमें हमारा कुछ सेल्स के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स का क्या हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है। तो जब वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा प्रोसेस होता है प्लांट्स में, स्टोमेटा जो है, सॉरी, जो हमारा प्रोसेस होता है इसका वाटर एंड मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है, उसमें हमने दो प्रोसेस को पढ़ा था, ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रोसेस। तो मैंने बताया था कि ट्रांसपायरेशन जो होता है वो बड़े प्लांट्स में होता है, और जो हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो किस में होती है, लोअर प्लांट्स में, मतलब जो भी हमारे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन सब में जो है, क्योंकि उनको एनर्जी की कम नीड होती है और वो आसानी से फूड को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है वाटर को, मतलब ऊपर तक ले जाने के लिए, अपवार्ड कंडीशन में ले जाने के लिए। सो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर हमारी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, वो उसको वाटर और मिनरल्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन वहाँ पर हमारी क्या प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वाटर और मिनरल्स वहाँ से
मिल जाते हैं और उसके बाद उनको नीड होती है CO2 की, जो उन्हें एनवायरनमेंट से मिल जाती है। आफ्टर देन वो क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। और फिर आप देख रहे हैं ग्लूकोज जब बन जाता है तो वही हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और नाउ हम देखेंगे कि अब क्या हुआ कि जो हमारे प्लांट्स, क्योंकि लीफ के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पर स्टिमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा का काम क्या है भाई, स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करवाते हैं और क्या करवाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करवाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैसेस से एक्सचेंज बाय द स्टोमेटा, एंड जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं किसके द्वारा, हमारा लेंटिसेल्स के द्वारा। सो देखिए यहाँ पर हमारे स्टोमेटा हैं वो क्या करेंगे, जो है एक्सचेंज करवाएंगे गैसेस का। और यहाँ पर साथ ही साथ एक प्रोसेस होगी इन्हीं के अंदर, उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। क्या होगी, ट्रांसपायरेशन। सो व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन, एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। जो एवापोरेशन होता है प्लांट्स का, प्लांट्स के अंदर वाटर का, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो हमारा वाटर का लॉस होता है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस चलती है इसमें। और दूसरा क्या है कि जो हमारी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी रूट्स होती हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर देन क्या होता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स के, एंड जो रूट हेयर्स होते हैं फिर वहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। जैसे ही डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट हेयर्स के द्वारा, एंड सॉइल उनको पास कर देती है एपिडर्मिस में एंड कॉर्टेक्स में एंड देन एंडोडर्मिस में एंड देन रूट जाइलम में। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। एंड देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो एक और चीज़ जान लेते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी ये प्रोसेस चलती है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं जाइलम वेसल्स के द्वारा, इनके स्टेम से। एंड जो वाटर है एंटर कर जाता है रूट जाइलम में, एंड देन रूट जाइलम से ये पहुँचता है जाइलम वेसल्स में, एंड देन जाइलम वेसल्स क्या करती हैं, जो स्टेम होता है उसकी ब्रांचेस के पास पहुंचती हैं, और वहाँ पहुंचने के बाद जो भी हमारा प्लांट है उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर वो ऊपर की ओर क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट। और जैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारी लीव्स तक पहुँचता है। लीव्स हमारी फूड को सिंथेसाइज करती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की, और हमें CO2 की। तो CO2 हमें बाय द एनवायरमेंट्स के द्वारा मिल जाता है, मतलब जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उससे हमें मिल जाता है, और वाटर हमें यहाँ से मिल जाता है, जिससे हमारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और उसी ग्लूकोज को मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑर्गेनिम्स के द्वारा। एंड देन वहाँ पर हमारी एक और प्रोसेस चलती है ट्रांसपायरेशन की, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्लांट्स में कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि जब हम प्लांट्स को ज़्यादा वाटर देते हैं तो प्लांट्स हमारा क्या कर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर एक प्रोसेस चलती है ट्रांसपायरेशन की। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या कर जाता है, लॉस हो जाता है, एवापोरेशन हो जाता है वहाँ पर, तो आसानी से प्लांट जितने नीड होती है उस वाटर की वो उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस प्रकार से हमारे प्लांट्स को क्या मिल जाता है, वाटर और मिनरल्स आसानी से मिल जाते हैं, और इसी वजह से वो आसानी से अपना स्टे कर पाता है, अलाइव रह पाता है। सो देखिए एक और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ कि जो हमारा वाटर है वो सक्ड किया जाता है जाइलम वेसल्स के द्वारा। जैसे कि हम लोग पीते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या पीते हैं, मैं बात करूँ कोल्ड ड्रिंक की, हमें यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है कि रूट प्रेशर क्या होता है, मतलब रूट प्रेशर क्या है यहाँ पर, क्योंकि रूट प्रेशर के द्वारा ही हमारा जो है वाटर का फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, और वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का कम ज़्यादा होता है। आफ्टर देन हमारा प्लांट जो है वो क्या कर पाता है, उस वाटर को ऊपर तक अपवार कंडीशन में ले जा पाता है। सो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, है ना। जब हम उसमें स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि व्हेन वी सक अ स्ट्रॉ, जब हम स्ट्रॉ को क्या करें, सक करें, तो क्या होता है कि द रिड्यूसिंग प्रेशर एट द टॉप ऑफ द स्ट्रॉ, आप देखेंगे कि जो वहाँ का जो रिड्यूसिंग प्रेशर होता है स्ट्रॉ का सबसे टॉप लेवल पर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और देखेंगे द कोल्ड ड्रिंक देन बॉटम ऑफ द स्ट्रॉ इज हायर प्रेशर, और जो कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटम साइड पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हायर हो जाता है। मीन्स जब हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ जब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं,
ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक और प्रोसेस चलती है ऑस्मोसिस की, जिसके द्वारा, क्योंकि हमें क्या होता है कि भाई हमें एटीपी वहाँ पर हमारी खर्च हो रही है, तो वहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो एटीपी का हम यूज़ करेंगे। जब एटीपी हमारी यूज़ होगी तो इससे क्या होगा कि कोल्ड ड्रिंक जैसे हम पी रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में हमारा क्या है कि हम हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर हमारा ऊपर की ओर लो प्रेशर था और नीचे की ओर हमारा क्या है, हाई प्रेशर। तो जैसे ही हमारा ऊपर से हाई प्रेशर लो प्रेशर जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है या फिर जो हमारा प्रेशर है, वो जब हमारा हायर से लोअर में जाएगा, तो बेटा क्या होगा कि द कोल्ड ड्रिंक फ्लो ऑफ द स्ट्रॉ इनटू अवर माउथ। इससे हमारा जो कोल्ड ड्रिंक जो है वो आसानी से हमारे मुँह में हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, सक कर पाएंगे। सेम ईयर प्लांट्स में भी यही होता है कि जो रूट प्रेशर होता है उसमें भी क्या होता है, क्योंकि उसको एटीपी की खर्च करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में उसको एनर्जी की नीड होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वहाँ पर कुछ आयंस और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वहाँ का सॉल्यूट है या सॉल्यूट की जो कंसनट्रेशन है या मिनरल्स की कंसनट्रेशन है, वो क्या हो जाती है, इनसाइड द रूट इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पर वो इंक्रीज़ होती है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रेशर है वहाँ का, वो हायर से किस में चला जाता है, लोअर में, यानी कि वहाँ पर एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। और कुछ हमारा जो जैसे ही हमारा वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी का जो है वहाँ पर यूज़ कर ली जाती है, मतलब एनर्जी का यूज़ होता है, यानी कि वेयर द एनर्जी इज़ यूज, जहाँ पर हमारे ये मिनरल्स और आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ती है और इनसाइड द रूट, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। और जब ऑस्मोसिस होता है, तो जितनी भी एनर्जी वहाँ पर खर्च हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जिससे क्या होता है कि जब वहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर आयंस जो होते हैं इनसाइड, उसमें H2O की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। इससे वो आसानी से क्या कर पाता है, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर पाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैकेनिज्म है किसकी, वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल ट्रांसपोर्ट की। सो नाउ आई विल दिस इज द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ minerals and ions. So now thank you so much, and further I will discuss the next topic of phloem and mechanism of food transportation. Thank you.